Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. So hello and welcome everyone. Right now we have with us Miss Samiksha Maitre, and she has got rank 302 in the UPSC Civil Services Examination 2023. So first of all, congratulations, Samiksha. Thank you, sir. And I really welcome you at the Diadem IAS platform. I really thank you for taking out the time to have this small discussion. First of all, how are you feeling after qualifying this prestigious exam? So जो feeling होता है, that is like finally whatever efforts that you have put in, finally they get rewarded. So that feeling is very nice. And since I'm not planning to give the exam again, so that relief is also there that finally I am away from the studies, or finally I got the break that I wanted since a long time. So that feeling is there, sir. Wonderful. So it's a sense of achievement also, and sense of progress. Like you are feeling free now. I'm completely free from the examination burden. Exam जो cycle है उससे free हो चुके हैं. Right. Wonderful. तो आपकी ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? Like when did you think of civil service examination? Was it like in your school time or during CA, after CA? So can you please briefly share about your journey from the schooling time, and brief about your other things, whatever you want to share, which can be helpful for the audience? Yes. Sir, actually, the first time that I thought that I should appear for this exam was in 2016, when I was in my articleship period for the CA. Maybe the reason for that was there were two main reasons for that. Firstly, I have my parents in the government service, so I could easily compare the life of work in the private with that of the public sector. So that comparison was there because I was undergoing the articleship. And the second thing was that the outcome which I wanted from my work. So whatever efforts I was putting in the work, I wanted to see them transform into something big. So I thought that what kind of job will give me that satisfaction, or the job satisfaction that one wants to achieve. So I thought that I should appear for the civil services. So because of these two main reasons, I thought of shifting to the civil services. Wonderful, I got it. So basically समीक्षा आप देखें तो जो CA के एग्जाम है वो अपने आप में एक काफी चैलेंजिंग और काफी बड़े अचीवमेंट भी है. तो CA आपने क्लियर किया, और आपने CA क्लियर करने से पहले ही आपने सोचा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपको देना है. So how do you see those people who are either pursuing CA or from the commerce background, BCom कर रहे हैं, MCom कर रहे हैं something, or they have completed CA, whatever, right? जो कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए सिविल सर्विसेज के बारे में सोचना इज लाइक कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें. तो आपने किस तरह से सोचना शुरू किया, या आपको बेसिक गाइडलाइन लाइट आपको कहाँ से मिलने स्टार्ट हुई इसके बारे में? सर मैंने जब 2016 में सोचा तो आई वाज इन द मिडल ऑफ द सीए जर्नी. सो आई थॉट आई फर्स्ट कंप्लीट द सीए, बिकॉज इफ आई शिफ्ट टुवर्ड समथिंग एल्स इन द मिडल ऑफ द सीए जर्नी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीए भी नहीं हुआ. So that is why very true. Yes. So I thought कि CA final पूरा complete करेंगे, उसी के बाद ही मैं UPSC का preparation I'll start. So 2019 was when I cleared as a CA, and उसके बाद ही जो भी full fledged preparation रहा है, it was entirely after 2019. So मैं एक ही suggestion ये दूंगी कि you can start reading newspapers when you are doing BCom, MCom or CA, and जो भी आपका preparation होगा that should be after completing that.
अगर बीकॉम एमकॉम है तो यू कैन साइड बाय साइड प्रिपेयर फॉर दैट, बट सीए जैसा अगर कोई कोर्स होता है तो आई सजेस्ट कि वो उसी के बाद ही आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन चालू करना चाहिए. And very true, I completely agree with this. I take many seminars at CA Institute and other platforms. So this is very popular question, sir. I have completed my CA intermediate. I am confident that I will clear CA final. So sir, should now I skip CA final and then jump to the civil services? So आपका जो advice है, I completely agree with that, because once you have the degree with you, the greatest advantage is that you have backup at your hand. You Yes. always are confident that if civil services do not work out, I always am available as a professional. तो आपका फ्यूचर सिक्योर होता है. तो ये बहुत अच्छा एडवाइस है. और जो बीकॉम वाले लोग होते हैं उन दैट दे कैन मैनेज, बिकॉज समहाउ दे विल नॉट हैव दैट मच ऑब्लिगेशन, तो दे कैन स्टार्ट. Yes. तो आपने after you completed CA, can you just briefly elaborate, like did you work somewhere or you directly jump out to preparation? और आपकी प्रिपरेशन की जर्नी कैसी रही है? आपका अटेम्प्ट वाइज एनालिसिस, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कैसा रहा, उसके बाद अटेम्प्ट दिया आपका कैसा रहा? Yes. So first I'll answer the first question that you asked कि how you मतलब मैंने कहीं पे काम किया है या नहीं किया है. तो बेसिकली आर्टिकलशिप के बाद मैंने कहीं पे भी काम नहीं किया हुआ है. आई होल हार्टेडली उसी के लिए मैंने अपना पूरा टाइम दिया हुआ है. बट वन थिंग दैट आई डिड वाज मुझे ट्रेडिंग करना पसंद था इन द शेयर्स. सो आई यूज्ड टू डू दैट. तो मुझे काफी अच्छा पास Yes, टाइम भी yes. मिल So गया you और belong एक to सोर्स ऑफ Bombay. इनकम भी मिल गया. You belong to Bombay, and It Bombay is was famous not for- that you cannot compare it with बाहर का जॉब, बट स्टिल आई हैड समथिंग इन माई हैंड कि मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हो कि आई डिड दैट. और इसकी अगर वाज इन 2020, तो जो मैंने 2019 टू 2020 तक प्रिपरेशन की, तो फर्स्ट अटेम्प्ट आई गेव इन 2020. एंड मुझे लगा कि तभी मेरा जो प्रिपरेशन का जो लेवल था दैट वाज हाईली इनसफिशिएंट, बिकॉज मुझे एग्जाम की डिमांड ही सही तरीके से पता नहीं थी कि हाउ टू प्रिपेयर, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में. तो ये पता नहीं थी, बट आई जस्ट सिंपली रेड थिंग्स हैफजर्डली एंड अपीयर्ड फॉर द एग्जाम. सो आई थिंक दैट वाज द मेजर मिस्टेक. जो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था इन 2021, उसमें मुझे पैंडेमिक की वजह से द टाइम दैट वाज देयर आफ्टर द एग्जाम टू कॉन्जिक्यूटिव प्रीलिम्स वो काफी कम था. सो अगेन हैफजर्डली प्रिपरेशन हुआ. उसके बाद 2022 में भी सेम चीज हुई कंटिन्यू. लेकिन 2022 में मेरा प्रिपरेशन कंपेयर टू द प्रीवियस अटेम्प्ट्स वाज बेटर, बिकॉज मैंने उसमें रिविजन स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो की थी. सोर्सेज मेरे थोड़े कंसाइज थे. So previous year questions I did not do that rigorously. So I think that was a major mistake in 2022's attempt. और जो 2023 का जो recent वाला जो मैंने attempt दिया है, fourth attempt, I think that was the most important and most ऐसा कह सकते कि मेरा best prepared ये था out of the 4 attempts. तो इसमें मैंने काफी changes लाए. Firstly मैंने previous year questions को काफी अच्छे से किया. Secondly, I had a set of sources defined for myself and मैंने वो change नहीं किए. I stick to that. Revision strategy was good in this attempt. And मैंने इसमें rather than just randomly giving test, I used to focus on my weaknesses. तो weak areas पे काफी अच्छे से focus किया. So at the end of this preparation, एक फीलिंग आ जाता है कि जो भी हाथ में था वो सब अच्छे से किया हुआ है. एंड एक सीरियस एस्पिरेंट जितना प्रिपेयर्ड होना चाहिए उतना वी आर प्रिपेयर्ड. सो ये फीलिंग आ जाता है तो आई थिंक यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड. एंड यही फिर कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में भी यही कॉन्फिडेंस लेके जाते हो आप. तो आई थिंक दिस हेल्प्ड. True. So as you told me that your prelims marks were also very good. I think 93 marks. Yes, right. When we had the cutoff of 75 means Yes. 75 marks in 2023. So it was a really big jump from 75 to 93. Yes. So you told me that आपने previous year question अच्छे से किए, revision अच्छे से किया था, और you had a sense of satisfaction कि हाँ इस बार अच्छे से किया है, अच्छे से इस बार हो जाएगा. Yes. Right? आपने प्रीलिम्स में इस बार सुना होगा सीसैट इट वाज नाइटमेयर. तो सीसैट में आपको कैसा लगा? सीसैट वाज इट रियली सो? हाउ डिड यू हैंडल दिस? सो सीसैट का जैसे ही मैंने पेपर देखा तो इनिशियल कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देख के मुझे लगा कि थोड़े से डिफिकल्ट है. सो व्हाट आई डिड वाज मैंने सारे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस पहले कर दिए. सो जब भी मैं घर पे भी प्रैक्टिस करती थी तो मैंने एक स्किल डेवलप की थी कि कॉम्प्रिहेंशन फटाफट वन रीड में पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड कर लेना. तो ये स्किल एक ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई थी. एंड व्हेन आई यूज्ड टू रीड द क्वेश्चन आई यूज्ड टू क्विकली फाइंड द आंसर टू इट. तो एक
कम से कम टाइम में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की एक हैबिट मैंने डेवलप की थी घर पे. सो दैट आई थिंक हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि इससे मेरे अराउंड 27 क्वेश्चन सिक्योर हो गए. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट कॉम्प्रिहेंशन के जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने फटाफट कर लिए. एंड जो उसके बाद टाइम बच जाता है, देन मैंने ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, टाइम, मोशन स्टडी, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब मैंने अच्छे से करके रखे थे. तो बिकॉज आई सेव टाइम इन कॉम्प्रिहेंशन, मुझे टाइम मिल गया टू सॉल्व दिस मैथ्स क्वेश्चंस. सो एक सजेशन यही रहेगा कि डेली सीसेट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिकॉज व्हेन यू सॉल्व ऑन अ डेली बेसिस आपका माइंड एक हैबिट बना लेता है टू सॉल्व द क्वेश्चंस. तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है टू डील विद द सीसेट. वेरी ट्रू, एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑन मैथमेटिक्स, यस. बिकॉज यस. जो एक चैलेंज बताया जा रहा है 2023 में, वो मैथमेटिक्स को बताया जा रहा है कि यस. आईआईटी के क्वेश्चंस पूछे एंड ऑल. तो यस. somehow you have very rightly hedged yourself. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत डिफिकल्ट नहीं बना सकते, बिकॉज somehow it cannot be out of the turn, like यहाँ पे Yes, ज्यादा right. कुछ चेंजेस नहीं कर सकते. एंड यू ऑल्सो फील वेरी सिक्योर कि ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया है, तो एक सर्टेन लेवल का मेरा मार्क्स पक्के हो गए हैं, सर्टेन हो गए हैं. Yes. वंडरफुल. हाउ मेनी मार्क्स did you score in the CSAT? I got 70. 70. Yes. Just I वंडरफुल. think 3 marks above the cutoff. हाँ राइट, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है. मतलब सीसेट क्लियर करना ही अचीवमेंट है. आप Yes. तो 3 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आए हैं इन द सीसेट. Yes. बहुत लोगों का तो सीसेट की वजह से इस बार होगा है. Right. Wonderful. In the GS also there are various doubts. Sir, should we focus on current? Current तो इतना ज्यादा change होता है frequently. और क्या स्टैटिक के जो प्री डिफाइंड सोर्सेज हैं वो सफिशिएंट हैं? फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत हम कहते हैं पॉलिटी में, इकोनॉमी में भी नितिन सिंघानिया सर की बुक होती है, या जैसे और भी मटेरियल आते हैं मार्केट में. तो आपको क्या लगता है कि स्टैटिक में कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस स्टैटिक पार्ट प्लस जो करंट अफेयर्स के सोर्सेज, स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं मार्केट से, कुछ भी एक दो सोर्सेज उठा करके अच्छे से करना जरूरी है उसको? या आपको लगता है कि कुछ ऐसा चेंज हुआ है स्ट्रेटजी में, आपने जो पहले नहीं किया था 2-3 अटेम्प्ट में और आपने इस बार किया? मतलब सर चेंज तो कुछ नहीं था, बिकॉज यही सेम बुक्स पढ़ के सारे एस्पिरेंट्स भी यही सेम बुक्स पढ़ के गए थे एग्जाम में, एंड इंक्लूडिंग मी. तो स्टैटिक के लिए आई वुड से कि एक ही चीज मुझे जो रियलाइज हुई है फोर्थ अटेम्प्ट में, दैट इज कि 85 to 90% एक्यूरेसी रेट होना चाहिए फॉर द स्टैटिक का जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं. मतलब वेरी वी ट्रू. शुड नॉट मिस आउट ऑन द बेसिक क्वेश्चंस. वंडरफुल. मतलब लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो आपको मिल रही है उसको यस. नहीं आपको मिस आउट करना है, क्योंकि अगर एग्जैक्टली. आपने वहां पे मिस आउट कर दिया तो एनीवेज यू आर आउट ऑफ कंपटीशन. यस. वेरी ट्रू. बिकॉज वेरी ट्रू. डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो आप वैसे भी गारंटी नहीं कर सकते, सो जो हाथ उसका में है पहले उसे राइट. लेकर आ जाइए, ये आई वेरी वुड सजेस्ट. सो वही अपना जो स्पेक्ट्रम होता है, लक्ष्मीकांत होता है, इसे इतना रिवाइज करिए कि इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके राइट आए. सो इतने लेवल की आपकी वो रिवीजन होनी चाहिए, या इतना आपको वो चीजें उसमें से पता होनी चाहिए, एटलीस्ट जो बेसिक बेसिक जो चीजें दे रखी है उसमें, तो दैट यू शुड नो. बट फॉर द करंट अफेयर्स आई फॉलोड अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी. उसमें मैंने दो, रादर देन जस्ट रिलाइंग ऑन वन सोर्स, आई यूज टू रिलाई ऑन 2 कोचिंग मटेरियल्स. सो ये आप कर सकते हो, और उससे मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, एंड आई यूज टू कीप ऑन रिवाइजिंग दैट पर्टिकुलर नोट्स. तो ये रहेगा, एंड इसके साथ ही आई यूज टू सप्लीमेंट इट विद द टेस्ट सीरीज. तो कभी कभी क्या होता है कि एक बार हम पढ़ने के बाद वी डोंट वांट टू रीड द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. सो यू कैन डू वन थिंग कि यू कीप ऑन सॉल्विंग टेस्ट, और उसमें से जो मिस आउट हुए हुए फैक्ट्स है इट जस्ट नोटेड डाउन इन वन सेपरेट बुक. तो आपको अगर कोई पर्टिकुलर एरर भी हो जाता है या कोई न्यू सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इसको आप अलग से नोट डाउन कीजिए एंड कीप ऑन रिवाइजिंग दैट ऑल्सो. इससे थोड़ा मोनोटनी भी ये हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपको सॉल्विंग की भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी. सो दिस इज व्हाट. वेरी ट्रू. वेरी ट्रू. वेरी ट्रू. आई कंप्लीटली रिलेट माय स्ट्रेटजी व्हेन आई यूज्ड टू बी एस्पिरेंट. तो एक बेसिक सोर्स रखनी है, प्राइमरी सोर्स रखनी है, और सेकंड सप्लीमेंट्री सोर्स होगी. राइट. और जो भी चीजें डिफरेंट मिलती हैं उसको नोट डाउन करके नोट डाउन. कंप्लीट योर सोर्स. वंडरफुल. Any other advice you would like to give regarding prelims, because it's a nightmare. अभी भी जो सबसे बड़ा nightmare है, people are not able to focus on mains also, and they are completely unsure कि prelims होगा कि नहीं होगा. आपको क्या लगता है, इसके अलावा कुछ और आप शेयर करना चाहेंगे? यस सर, आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि आप अगर ये लास्ट ईयर का भी पेपर देखेंगे उसमें कई सारे स्टेटमेंट्स थे अराउंड, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, बट आई थिंक 7 to 8 क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रेफरेंस जरूर था. सो उसको ध्यान से कीजिए, उसके जो ऑप्शंस होते हैं उसको भी सर्च करके आप
लाइक ट्राई टू सर्च द ऑप्शंस दैट इज गिवन. अगर एक क्वेश्चन में सपोज 4 रिवर के नाम दिए हुए, तो सर्च द 4 रिवर, उसके बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, मेक अ सेपरेट नोट ऑफ दैट. सो आई राइट थिंक राइट राइट, उससे भी आपके कई सारे स्टेटमेंट्स जो आएंगे क्वेश्चन में वो जो सोल्व हो जाए। स्टेटमेंट्स हाँ, दिए जो होंगे, थीम वो होती है सॉल्व वो हो जाएंगे. अराउंड सेम ही रहती है, यस, अराउंड इर्द यस, गिर्द ही यस, सेम रहती है। एग्रीड यस. एग्रीड। So this is one important thing. वेरी क्रूशियल। ट्रू ट्रू ट्रू। एनीथिंग एल्स इन दैट? मॉक के बारे में कि इतना टाइम लो, ओएमआर के साथ साथ दीजिए. कई बार ओएमआर में भी मिस्टेक्स होती है फिल करते वक्त एग्जाम में, इफ यू डोंट हैव सफिशिएंट प्रैक्टिस. तो टाइम्ड एनवायरनमेंट में सॉल्व करना. और एक और एक क्रूशियल सजेशन दैट आई वुड गिव कि एग्जाम के माहौल में जो टेस्ट होती है, काफी सारे कोचिंग उसे कंडक्ट करते हैं, तो आई थिंक वो देना चाहिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट स्ट्रेस में परफॉर्म नहीं कर पाते. सो वो जो स्ट्रेस में परफॉर्म करने की भी हैबिट होती है, वो ये एग्जाम लाइक कंडीशन में जब हम टेस्ट देते हैं, उससे प्रैक्टिस हो जाता है काफी. So I think that वेरी also ट्रू, helps. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मतलब ये मार्किंग, गलत ओवर मार्क कर देना, एंड ऑल दीज आर Yes, स्मॉल yes, स्मॉल मिस्टेक्स व्हिच वी डोंट इवन एक्सपेक्ट दैट वी विल डू दैट। yes, 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 right. वंडरफुल। नाउ मूविंग ऑन टू द मेंस, it was your first mains, Yes, sir. and you cracked in the first mains, you got to the interview and finally got selected. So what was your strategy regarding the mains? So starting with the GS. In the Yes, GS, every paper has different strategy. Definitely we cannot go for the detailed book list and all those things. However, still, the things which you think, few things like 2 3 things which you think are very crucial to clear the mains GS part in a very good manner. yes. सर सबसे पहली बात होगी कि नोट्स नोट्स कैसे बनाए मेंस के. तो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि प्रीलिम्स के नोट्स शुड बी सेपरेट एंड मेंस के नोट्स शुड बी सेपरेट. कई लोग उसको सेम ही बनाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम में जो पूछने का ये है मकसद है, दैट इज टू चेक द फैक्ट्स. लेकिन मेंस में आपके ओपिनियन और एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट होती है, तो उसके नोट्स अलग होने चाहिए, पहली तो बात. Right. सेकेंड इज की हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए आपके, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आंसर्स लिखने हैं एग्जाम में, तो यू शुड हैव योर ओन सेट ऑफ हैंड रिटन नोट्स. जो भी मेंस का सिलेबस दे रखा है, उसमें जो भी कीवर्ड्स दिए हुए हैं, आपके पास वो पर्टिकुलर कीवर्ड पे 1 या 2 पेज में नोट्स रेडी होने चाहिए, एवरी कीवर्ड. Hmm. Hmm. सो यू शुड हैव द नोट्स ऑन दैट. उसके बाद सर मेरा एक पर्टिकुलर फोकस वॉज कि मैं पर्टिकुलर आंसर में एक अपनी तरह से कुछ वैल्यू एडिशन करूं. सो Hmm. आई यूज टू सप्लीमेंट एवरी आंसर विथ एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, जो मैं न्यूज़पेपर से या कहीं से भी पढ़ के हमें पता चल जाता है. तो आई यूज टू नोट इट डाउन कि एक पर्टिकुलर आंसर आया, तो आई शुडंट बी जस्ट सिंपली राइटिंग दैट आंसर, आई शुड मेक इट seem somewhat different than the other aspirants. So इसमें एग्जाम्पल्स हो गया, या कभी कभी एक आधा डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, या एक स्टैटिस्टिक दे दिया, कोट्स दे दिए. इंटरनेशनल रिलेशन में आई यूज टू कोट, जैसे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उनके कोट्स होते काफी सारे. सो आई यूज टू कोट दैट इन द आंसर. सो इस तरीके से अगर हम अप्रोच रखेंगे, तो हमारे आंसर्स काफी वाइब्रेंट हो जाएंगे, एंड दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर नोट्स. तो ये आई यूज टू डू. And apart from that, sir, answer writing is very important for means. So initially क्या होता है कि aspirants का ये fear होता है कि टाइम पर्टिकुलर टाइम में आंसर कंप्लीट नहीं होता है, सो दे आर डीमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ दैट. सो आई वुड से कि पहले फोकस ऑन द क्वालिटी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर. एंड जैसे आप इन पे फोकस कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली लिख लिख के आपका टाइम भी कम होते जाएगा. सो दिस शुड बी देयर फोकस. एंड sir, apart from that, I would say current previous year questions is very important again for the mains. So मेरे पास सारे previous year questions का around say 5 to 10 years का I had a model answer. You can do it in a rough format, not necessary कि आपको पूरा उसे लिखना है. Just एक Right. आप particular question में क्या intro लिखेंगे, उसमें क्या points आप लिखेंगे, examples क्या देंगे, and conclusion क्या देंगे. इतने format में अगर आपने सारे previous year questions को answer कर लिया, तो more or less questions repeat होते ही है. नॉट एंटायरली वर्बैटिम क्वेश्चन नहीं आएगा रिपीटेड, बट वो थीम रिपीट Right. हो जाता है. सो दिस थिंग्स आई फोकस्ड. ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जैसे आपने बताया कि आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स रहे, तो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड फॉर अ जर्नी, वेयर यू आर getting stuck at first place itself, like 2020 से 2024, it's been more than 4 years, है ना? यस,
yes, तो इट्स लाइक रिपीटिंग योर सीए कंप्लीटली, दैट टू विद yes, अनसर्टेनिटी कि आप सिलेक्ट होंगे फाइनली नहीं होंगे। तो right. आपको क्या मोटिवेट किया? यू आर हैविंग वेरी गुड डिग्री एफ सी ए, यू कैन हैव डन वंडरफुल जॉब लाइफ में, और भी आप कुछ कर सकते थे। तो आपको क्या मोटिवेट करता रहा कि आप जर्नी को कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहे? For that would go waste. और जो हमने प्लान करके रखा था कि आई वुड एक रात में, वी कैन नॉट फॉरगेट दैट। सो आई थिंक दैट वाज द मेजर थिंग दैट केप्ट मी गोइंग, कि एक फोर्थ टाइम एक ट्राई देके देखते हैं कि हो जाएगा शायद। सो दिस वाज द मेजर मोटिवेशन कि एग्जिट तो नहीं करना है ये स्टेज पे आकर। राइट राइट, मतलब इतने आपने प्रिपरेशन कर लिया, आपको लगता था कि अभी थोड़ी सी कमी रह गई है, गैप फिलअप करना है और सिलेक्शन हो जाना चाहिए। यस, यस, वंडरफुल वंडरफुल। चलिए यस, अब आते हैं ऑप्शनल के ऊपर। यस, तो आपका ऑप्शनल कॉमर्स एंड यस, अकाउंटेंसी था। ठीक है, तो बेसिकली एक simple question, because you come from the chartered accountancy background. So, commerce optional, it would have been a natural choice for you. Still, there would have been some questions that why should I take commerce optional? Why I should not take any other optional? काफी सारे लोग कहते हैं कि सोशियोलॉजी ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, है ना, जहाँ पर आपको जीएस से ओवरलैप होगा। तो आपको क्या लगता है कि कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए कॉमर्स क्यों है? आपको ऐसा लगता है कि कॉमर्स ही लेना चाहिए उनको, और अगर हाँ तो क्यों लेना चाहिए? आपने तो लिया ही, आपने क्वालिफाई भी किया है। सर द बेसिक रीजन व्हाई आई थॉट कि कॉमर्स ऑप्शनल ही लेना चाहिए, बिकॉज एक तो पहली बात सीए किया हुआ है। इफ यू हैव स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट देन व्हाई नॉट टेक दैट सब्जेक्ट इटसेल्फ, क्योंकि इट इज द वी हैव स्पेंट 5 years विद द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो इसके लिए वो एक काफी कॉमन चॉइस था या फिर काफी रैशनल चॉइस था मेरे लिए। ट्रू। एंड सेकेंड रीजन कि rather than studying completely new subject, why not sharpen this subject itself, कि जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो हमारी ऑलरेडी वी आर कंफर्टेबल विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, व्हाई नॉट डू दैट। सो एक कॉन्फिडेंस भी होता है कि वी हैव क्लियर सीए, तो ये तो वी कैन डू। सो एक अपना खुद का सब्जेक्ट कॉन्फिडेंस। है, अपना खुद का yes, सब्जेक्ट है। yes, it is our own subject, so that is why that was the basic reason for that. ट्रू 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 ट्रू। सो नाउ कमिंग टू द कॉमर्स ऑप्शनल, what should be the book list? Like you have done CA, so for the paper one, did you follow your CA books, or like you would have supplemented with something? और आपका क्या अप्रोच पेपर वन के प्रति रहा? लाइक न्यूमेरिकल वर्सेस थ्योरी, आंसर राइटिंग आपने किया, मतलब ओवरऑल पेपर वन को किस तरह से अप्रोच किया जाना चाहिए कॉमर्स के लिए? सो फॉर पेपर वन एज वेल एज पेपर टू आई फॉलोड कोचिंग मटेरियल, वो मेरा बेस था। एंड उसमें जो वैल्यू एडिशन मेरे साइड से था दैट आई एड टू पर्टिकुलर वो जो बेसिक नोट्स थे उसमें। सो इफ यू टॉक अबाउट पेपर वन इन पर्टिकुलर, उसमें मेरी सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम, जैसे जीएस के लिए हम करते हैं वैसे सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी करें टू सी कि व्हाट टॉपिक्स आर आस्क्ड फ्रीक्वेंटली। तो इससे एक आइडिया हो जाता है कि कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज। सेकेंड थिंग ये होता है कि पेपर वन सबको लगता है कि न्यूमेरिकल्स बेस्ड होता है, थियोरी इज एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट इन पेपर वन। सो आई थिंक जैसे हम जीएस के मॉडल आंसर्स प्रिपेयर करके रखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, वैसे सेम थियोरी के भी सारे मॉडल आंसर्स वी शुड हैव रेडी विद आवरसेल्व्स। उसके बाद जो टॉपिक्स होते हैं पेपर वन में, थियोरी वाले स्पेशली, उसमें आपको पर्टिकुलर टॉपिक को एग्जाम्पल्स भी क्रिएट करके रखिए कि जो ये पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो हाउ आई विल रिलेट इट विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल। इससे एग्जामिनर को एक फील आता है कि दिस पर्सन इज अवेयर एंड ये जस्ट अपने डोमेन में नहीं सोच रहा है, इसको अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का भी जो जो रियल लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं या जो करंट अफेयर्स होते हैं इसका भी काफी नॉलेज है। सो आई थिंक दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई डिड इन पेपर वन। इसके बाद न्यूमेरिकल्स को टाइम्ड मैनर में सॉल्व करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि ताकि एरर्स ना हो, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है। सो वी हैव द प्रेशर ऑफ कंप्लीटिंग द पेपर ऑल्सो। सो एक प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलर टाइम में ही कंप्लीट हो। सो आई राइट। थिंक तो जैसे आपने बताया कि थ्योरी भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक दिस इज व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द सीए प्रिपरेशन, and yes, this yes, is what makes it even a platform which makes the commerce optional as a level playing field for everyone.
Yes, right. सीए में हमारा न्यूमेरिकल ज्यादा होता है और यहाँ पर थ्योरी पे भी फोकस होता है, तो इवन इफ द पर्सन इज नॉट हैविंग द कॉमर्स बैकग्राउंड, still they have equal probability, I mean sorry, even if the person is not having the CA background but has the commerce background, still the person has the equal probability of getting good marks. जैसे इस बार भी हमारा कई स्टूडेंट हैं, शिवानी गुप्ता है, दिव्या है, तो वो बीकॉम बैकग्राउंड से हैं और दे हैव गॉट डिसेंट मार्क्स इन पेपर वन, आपके भी डिसेंट मार्क्स हैं। तो आई थिंक पेपर वन के अंदर आपने बहुत सही हिंट आउट किया कि पेपर वन डू नॉट मीन न्यूमेरिकल, Yes, और yes. बीइंग ए सीए आल्सो समटाइम पीपल टेक इट एज ए ग्रांटेड कि हाँ हो जाएगा, सीए हो इंटरव्यू जाएगा, किया है exactly. है ना। तो Yes. आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए, आपको जैसे प्रैक्टिस की शॉर्टेज लगी, या आपको कुछ और सजेशन देना चाहते हैं? जैसे आपने बताया कि टाइम्ड मैनर में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने जरूरी है, हाँ, प्रीवियस yes, क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं उनके आंसर्स बनाने जरूरी हैं। yes, yes. सर चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि हमें जीएस के साथ अपना टाइम बैलेंस करना होता है फॉर द ऑप्शनल। और राइट, जो पेपर वन होता है ये थोड़ा सा लेंदी होता है, बिकॉज इसमें सॉल्व कर एक एक क्वेश्चन को ही 20 मिनट लग जाते हैं। सो कहीं ना कहीं वो टाइम कंस्ट्रेंट थोड़ा हो जाता है, बट आई थिंक इफ यू डेडिकेट और बैनर यू विल दैट। और इसके बाद सर एक लिस्ट आपकी रेडी होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स की, कि कौन से टॉपिक्स है जिसपे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और पर्टिकुलर उसको पीरियोडिकली आप एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा के आप उसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए, एंड उसके सामने आप डेट लिख दीजिए आपने किस डेट को वो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को सॉल्व किया हुआ है। इससे आपके सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस होंगे, और इसके साथ साथ आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि दैट आई हैव कवर्ड ऑल द न्यूमेरिकल्स। सो ये न्यूमेरिकल्स के लिए स्ट्रैटेजी आई थिंक वेरी इट गुड, हेल्प। वेरी गुड, मींस यू शुड हैव सम काइंड ऑफ सिलेबस मैनेजमेंट बेसिकली। यस, यस, मतलब यस, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने इतने न्यूमेरिकल सोल्व किए हैं, लास्ट मैंने ये न्यूमेरिकल सोल्व किया था, तो अभी मुझे नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल सोल्व करना चाहिए। यस, समहाउ यू शुड हैव ए सेंस ऑफ कंट्रोल कि हाँ यस, मेरे पास इतना क्वेश्चन करने के लिए है और इतने मेरे हो चुके हैं। दिस इज वेरी यस, इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन में सिलेबस मैनेजमेंट इटसेल्फ इज ए वेरी बिग स्किल, अदरवाइज आवर माइंड विल कीप राइट, वंडरिंग कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कर लेते हैं, ये छूट गया, ये पता नहीं कब किया था, 6 महीने पहले किया था, 2 महीने पहले किया था, कुछ याद नहीं रहता। वेरी गुड टिप यू हैव गिवन कि डेट लिख देना चाहिए, उस पर पेंसिल से हाँ, डेट लिख देंगे तो मन में कॉन्फिडेंस रहता है कि रिसेंटली किया है हमने ये। यस। वेरी ट्रू, एक वेरी इवन ट्रू। एक्सेल शीट भी बना सकते हैं कि उसमें अपडेट करते जाएंगे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक इस डेट को कर दिया है। गुड गुड, मतलब एक डायरी टाइप का हमें रखना चाहिए। यस, यस, हाँ, राइट। गुड गुड। इनफैक्ट अभी मैं 2-3 महीने पहले सुजावल जग्गा के साथ में सेशन मैंने लिया था, तो ही ऑल्सो टोल्ड कि सर मैंने पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक लिस्ट में बना के, आई यूज टू मेंशन कि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ये मुझे ध्यान रखना है रिवीजन के टाइम पे। सो हम समहाउ अगर हम ये करते हैं तो रिवीजन में इट इज वेरी हेल्पफुल, बिकॉज रिवीजन इज नॉट नेसेसरीली कि यू हैव टू रिपीट एवरीथिंग फ्रॉम जीरो, सारा थ्योरी को राइट, पूरा जीरो से पढ़ना है। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे फोकस करना है हमें, या इस एलिमेंट को मिस ना करें, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम इस एलिमेंट को जरूर लिख के आए, या इस न्यूमेरिकल का जो ये कंपोनेंट है इसकी ट्रीटमेंट हमें पता होनी चाहिए। राइट। सो मैनेजमेंट ऑफ सिलेबस, मैनेजमेंट ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने बताई भक्ति वाली। नाउ कमिंग टू द पेपर टू, तो पेपर टू में बेसिकली इट इज नॉट फ्रॉम योर सीए बैकग्राउंड। नो, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर पेपर टू कंप्लीटली न्यू है, जीएस में भी हेल्प नहीं करता है, तो हाउ डू यू थिंक, इज इट रियली डिफिकल्ट और इट इज मैनेजेबल? सर आई थिंक इट इज क्वाइट मैनेजेबल। इसको मैनेजेबल बनाने के लिए आपके खुद के नोट्स होने चाहिए, बिकॉज आप कोई भी कोचिंग का भी ले लो या फिर आप कोई पर्टिकुलर रेफरेंस बुक भी फॉलो कर रहे हो, तो वो इतने बल्कि होते हैं कि लोगों को वो देख के लगता है कि इट इज क्वाइट वास्ट, और इसको कंसाइज कैसे करें। तो आई थिंक आपके हर चैप्टर पे 6 to 7 पेजेस के एक नोट, और आप फर्दर रिविजन के साथ उसको और कम भी कर सकते हो, कंसाइज भी कर सकते हो। सो जितना आपका कंसाइज होगा मटेरियल, at the end of like just I would say few hours before the paper 2, जो पेपर वन एंड पेपर 2 में गैप होता है, उसके लिए रिवाइज करने के लिए आई हैड एंटायर पर्टिकुलर लाइक जैसे एचआरएम हो गया, आईआर हो गया, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आई हैड अराउंड 4 to 5 पेजेस नोट्स। तो 5 पेजेस में मेरा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता था। सो जितना आप कंसाइज करोगे रिपीटेड रिविजन के बाद, उतना इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। एंड वेरी जो ट्रू, फाइनल आपके नोट्स होंगे ना, उसमें खाली वैल्यू एडिशन वाले जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे थिंकर के नाम, या कोई पेशेंस हो रियल गए। लाइफ एग्जाम्पल हो गई, कोट्स हो गए, कोई डेफिनेशंस हो गई, ये से आपको फेच होंगे मार्क्स, बिकॉज वैल्यू एडिशन दिस शुड बी देयर इन योर आंसर। बाकी वंडरफुल। आजू बाजू की चीजें तो हमें याद होती है, कंसेप्ट याद होती है, दैट वी हाँ कैन बेसिक इजीली चीजें तो राइट। हमें याद होती हैं, सो आई राइट, जो फॉलो।
यस, जो मार्क्स बूस्टर चीजें हैं जहाँ पर डिफरेंशिएशन हम क्रिएट कर सकते हैं, थिंकर्स के नाम, कोटेशंस और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स, तो हम लोग भी इस चीज को एक सेपरेट कंपाइलेशन के रूप में बना के देते हैं, और एक शॉर्ट नोट्स भी पेपर में बना के देते हैं, ताकि स्टूडेंट इन सब चीजों पे सेपरेटली फोकस कर सके, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होता है। पता ही होता है, यस। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ में अगर हम ये चीजें भी अपने होल्ड में रखें तो हमारे आंसर के अंदर एक अलग इम्पैक्ट दिखता है, क्योंकि हमारे आंसर जो है वो एक यूनिक आंसर, एक ओरिजिनल आंसर दिखता है। वेरी गुड। राइट। आंसर राइटिंग को लेकर आपको क्या मानना है? आंसर राइटिंग, लाइक, should it be done like daily basis, or should it be done like only test, सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस कर लो, फुल टेस्ट प्रैक्टिस कर लो, या आपने प्रैक्टिस किए भी थी कि नहीं थे? आपका कितना मतलब रहा, हाउ मच डिड यू वर एबल टू डू? सर आई थिंक डेली राइटिंग काफी हेल्प करता है, बिकॉज आप अगर डेली बेसिस पे कोई चीज करते हो तो वो आपका एक हैबिट बन जाता है। सो आप अगर उसको काफी टाइम के बाद करोगे तो, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, कि आप काफी टाइम के बाद अगर एक वीकली टेस्ट लिख रहे हो तो वो एक प्रैक्टिस हो जाती है। सेकंड थिंग, स्पेशली इन एग्जाम, टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप डेली बेसिस पे लिखते हो तो आपकी स्पीड भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाती है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप डेली बेसिस पे तो करते ही रहिए, और उसके साथ साथ आप वीकली एक टेस्ट दे सकते हैं कोचिंग का। सो दिस इज पर्टिकुलरली माय। वेरी ट्रू। तो डेली आंसर राइटिंग का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपके माइक्रो इंप्रूवमेंट होते हैं। यू आर एबल टू सी कि व्हाट वाज माय अर्लियर स्टेटस एंड नाउ हाउ आई एम इम्प्रूविंग। टॉपिक वाइज भी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। और सेक्शनल टेस्ट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यू आर नॉट एबल टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस, स्टिल यू आर राइटिंग द टेस्ट, सो दैट प्रॉब्लम इज नॉट हियर। ट्रू, ट्रू। इसके अलावा और आप कॉमर्स में, स्पेशली कॉमर्स ऑप्शनल में, एनी अदर थिंग यू वुड लाइक टू सजेस्ट, द सम मिस्टेक विच पीपल डू, और आपको लगता है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए कॉमर्स वालों के लिए? सर पेपर 2 के लिए एक पॉइंट आई रिमेम्बर्ड, कि जो भी आप डेफिनेशन लिखते हो उसके साथ वो किसने डेफिनेशन दी है वो नाम भी आप याद कर लीजिए। बिकॉज आप उससे काफी इम्पैक्ट, जो भी एग्जामिनर चेक करता है तो काफी इम्पैक्ट उसको, लाइक थिंकर्स ही के फील्स नाम, कि आपने बिल्कुल। थोड़ी वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। राइट, राइट। सो क्रेडिबिलिटी के दैट, लिए। यस, यस। सो क्रेडिबिलिटी। वो एक होती है बात। और सेकेंडली, एज आई सेड, कि नोट्स आपके रेडी होने चाहिए। या पर्टिकुलर जैसे एडजस्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स, या डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट देनी होती है प्रोविजंस की, तो उसका एक अलग से आप शीट बना के रख सकते हो। आप कोई मिस्टेक्स कर रहे हो रिपीटेडली पर्टिकुलर प्रोविजन में, तो उसको एक सेपरेटली नोट डाउन करके रखिए। तो आई थिंक दैट ऑल्सो विल हेल्प। राइट, जो जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उसको सेपरेटली नोट करके रखें, सो दैट डोंट रिपीट इट नेक्स्ट टाइम। वंडरफुल। यस, You also got very good marks in interview, 190 marks. यस, It is very good score. So, यस। did you prepare sincerely for the interview? How was your preparation strategy? सब पहली बात तो मेरा इंटरव्यू वाज ऑन 1 अप्रैल, तो मुझे काफी टाइम मिल गया था प्रिपेयर करने के लिए। तो आई हैड अराउंड 3 मंथ्स। तो इसको मैंने काफी डिटेल में प्रिपेयर किया। फर्स्टली मैंने डैफ जो होता है उसको काफी अच्छे से प्रिपेयर किया। सो पर्टिकुलर डैफ का जो कीवर्ड होता है, आई हैड अ सेट ऑफ 20 to 25 क्वेश्चंस, तो उसको मैंने आंसर्स भी उसके प्रिपेयर करके रखे थे कि इसमें मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे क्या आंसर दूंगी। सो दैट आई डिड फॉर डैफ। इसके बाद सर, सिंस आई हैड कॉमर्स का बैकग्राउंड, तो मैंने इकोनॉमिक्स, जो न्यूज़पेपर होता है इकोनॉमी रिलेटेड, तो मैं आई यूज्ड टू रीड मिंट न्यूज़पेपर अलोंग विद द इंडियन एक्सप्रेस। तो ये दो न्यूज़पेपर आई यूज्ड टू रीड थरोली। एंड रिलेटेड न्यूज होती है उसको काफी स्पेसिफिकली फोकस किया। आई यूज्ड टू हैव माय ओपिनियन रेडी ऑन द पर्टिकुलर न्यूज। उसके बाद उसके सारे जो फैक्चुअल चीजें होती है उसको भी मैंने नोट डाउन करके रखा था, बिकॉज इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। इफ दे आर कवरिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, दे माइट आस्क यू एनीथिंग अबाउट दैट। सो एक नोट मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू एज वेल। लेकिन मेरे जो एक्चुअल इंटरव्यू में मुझे करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं। इट वाज एंटायरली डैफ बेस्ड, आई वुड से मेजरली डैफ बेस्ड। तो एवरीवन शुड प्रिपेयर, बिकॉज पता नहीं होता क्या पूछा जाए। मुझे विच हेल्प्ड मी कि आपकी जो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी होती है वो दिखनी चाहिए आपकी पर्सनालिटी में। आई हैड अ हैबिट कि मुझे अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पता है तो आई यूज टू क्लियरली से कि मुझे नहीं पता है। आई नेवर यूज टू ब्लफ अबाउट दैट।
सो आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, और ये मुझे काफी मॉक्स में उन्होंने पॉइंट आउट भी करके बताया कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी एंड यू शुड कैरी इट विथ यू। यहाँ तक कि कभी कभी मुझे डाउट भी होता था कि मैं जो बोल रही हूँ वो बराबर, दैट कि आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर, एंड आई थिंक द टेस्ट इन द दे आर नॉट गोइंग टू टेस्ट योर नॉलेज दैट मच, दे आर गोइंग टू टेस्ट योर पर्सनालिटी। सो आपने जो डैफ में भी मेंशन कर रखा है वो वही चीजें मेंशन करिए जो आप एक्चुअली में करते हो। जैसे आपको कोई चीज आपकी हॉबीज पूछी है तो आपको वो हॉबी आपकी, दे शुड फील कि आपकी रियली वो हॉबी है। सो इट शुड फील नेचुरल। एंड कहीं पे भी ब्लफ किया है या झूठ बोला है या दे आर नॉट शोइंग इंटेग्रिटी, ऐसा कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई डिड Very true, very फॉर द true. It, इंटरव्यू। it is a personality test. It is not the knowledge test. So they are testing the यस। character, personality, characteristics of the personality. बहुत अच्छा आपने बात बताई है कि प्रिपरेशन के साथ साथ में आपको अपने आप को कैरेक्टर वाइज यू हैव टू रिफ्लेक्ट एंड यू हैव टू शो whatever you have you have, you have whatever you don't have. यस। So you should not try to make up something which you don't have. Very यस। true. आपका सीए बैकग्राउंड का भी प्रिपरेशन जैसे आपने किया होगा, तो डिड यू फेस एनी क्वेश्चन फ्रॉम द सीए बैकग्राउंड, यू नो कुछ कॉमर्स ऑप्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हो? जैसे आपने बताया कि इकोनॉमिक्स संबंधित आपने काफी प्रिपरेशन की थी, दैट इज वेरी ट्रू। आई ऑलवेज सजेस्ट कि इकोनॉमिक्स जो है वो सीए के लिए तो काफी क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं। तो आपसे क्या आपके क्वेश्चंस थे कुछ कॉमर्स इकोनॉमिक्स आपके सीए बैकग्राउंड से संबंधित? सर एक क्वेश्चन ऑडिटिंग के रिलेटेड था कि इफ द ऑडिटर्स डोंट डू देयर रोल प्रॉपर्ली द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द नेशन विल कोलैप्स, सो यू हैव टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट्स कीपिंग योर इमोशंस असाइड। सो ये एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। वेरी गुड। सेकंड, दे थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था सेकंड, कि दे टोल्ड मी कि दो कंपनीज है और उनकी अपनी अपनी बैलेंस शीट है, जो टैलिंग अमाउंट होती है दोनों की सेम है। सो हाउ यू एनालाइज और कंपेयर द परफॉर्मेंस और कंपेयर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बोथ द कंपनीज? सो ये एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। एंड इसके अलावा सर मैंने ट्रेडिंग मेंशन किया था, तो ट्रेडिंग के रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस थे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ बाय द चेयरमैन सर, इट वाज रिलेटेड टू द ट्रेडिंग। उस दिन पर्टिकुलरली आई थिंक फर्स्ट हाफ में मार्केट वाज, आई थिंक इट रीच्ड द ऑल टाइम हाई। सो दे आस्क्ड मी व्हाई इट रीच्ड ऑल टाइम हाई। सो जस्ट मैंने न्यूज़पेपर में वो 3 आवर्स के जो मेरा, बिकॉज आई वाज द लास्ट वन टू गो, सो आई हैड 3 आवर्स, सो आई रेड द इकोनॉमिक टाइम्स और उसी में मेंशन था कि एमपीसी होने वाली थी आरबीआई की and the rate was going to stay unchanged. So I linked it with that कि because it is going to stay unchanged, so liquidity is going to stay as it is, and market reacted to that because it's a positive news for the market. So इस तरीके के questions थे। एक और क्वेश्चन ये था कि स्पेकुलेशन एंड जैसे गैम्बलिंग होता है, तो इज स्पेकुलेशन इक्विवेलेंट टू गैम्बलिंग? सो इफ नो देन यू हैव टू जस्टिफाई दैट। सो दीज वर द मेजर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सीए बैकग्राउंड। Very. So how did Diadem IAS contribute to your preparation? आपने एक पर्टिकुलर वीडियो आपने पब्लिश किया था जिसमें के जो कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको किस तरीके से आंसर करें, आपने वो उस वीडियो में बताया था। सो आई थिंक दैट गिव मी अ डायरेक्शन एज टू हाउ वी शुड आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि कितना एनालिटिकल होना जरूरी होता है, बिकॉज कभी कभी वी जस्ट डोंट नो अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग कि ये भी एस्पेक्ट हो सकता है। सो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट मुझे मिल गया कि किस तरीके से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे और किस तरीके से पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। एंड आपने एक नोट भी जारी किया था जिसमें आपने पर्टिकुलर क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट होती है वो भी आपने मेंशन की थी। सो आई फॉलोड दैट लिस्ट एज वेल। Okay, so are you happy? You satisfied with the contribution that we did? A very good role that Diadem played in my preparation. Most welcome, Samiksha. And we had wonderful discussion today, and my best wishes to you for all your future endeavors. Scoring high in the commerce optional requires three things. Number 1, latest material. Number 2, previous year question coverage. And number 3, right practice of the answer writing. Our classroom course of commerce has all these three things. Hello, my name is C. Rahul Kumar. Come and join us.